Hello everyone, welcome to the very first lecture of mechanics. Today I'll be starting with the mechanics. As for myself, my name is Sahil and I have completed my graduation in physics from University of Delhi. So in this lecture series I'll be teaching you physics and the concepts that I have learned through, and I'll be following graduation pattern and competitive exams like JAM approach. Okay. So today is the first lecture, so I'll be only introducing mechanics, and yes, we'll be starting with mechanics only. So mechanics is the earliest branch that have been studied by the human civilization. It is the earliest. I hope you cope up with my handwriting. I'll get used to it. It is the earliest branch of the physics that we are studying it. Obviously, there have been people like Galileo and all who've been studying the astrophysics and all from a very ancient time. But mechanics is something which we feel is very basic. Like if you open a door or simply get up from your chair, it involves mechanics. So we consider it as the earliest branch of the physics that have been studied. Now, mechanics is there are many branches of mechanics. Okay, there are many branches of mechanics which are, let me tell you, is the classical mechanics. Classical mechanics. Then we have the relativistic mechanics. Relativistic mechanics. Let me just, uh, reduce my pen size. Okay, relativistic mechanics, and we have then the quantum mechanics. Now this is the branch of mechanics which we study when we are dealing with the macroscopic world. Okay, macroscopic world which are very slow, or I must say which have velocity very less velocity. Okay, less. And relativistic mechanics is in which the velocity of the objects is approximately equal to the velocity of light. And the quantum mechanics is the branch in which we study the microscopic world. Okay, now these two come under the modern physics, which we are going to study later. In the today, for the time, I'll be focusing on classical mechanics. Now, diving a bit deeper, classical mechanics in itself is divided into three parts. First one is the Newtonian. Newtonian mechanics. Second one we have Lagrangian mechanics. Okay, and then third we have the Hamiltonian. In which we deal here we deal with force, here we deal with the Lagrangian, and here we deal with Hamiltonian. Okay, now these two are a bit advanced topics for now. What I'll be focusing on is the Newtonian mechanics. Okay, so these are the topics. The rest are the topics that we'll be studying, or you guys, if anyone is in their first semester, will be studying it in the various semesters that will be coming ahead. And Lagrangian and Hamiltonian are quite advanced. So apart from all this mechanics, which you thought is the whole thing, it's not. And whatever you have studied, if you are a first year, so whatever mechanics you have studied, that is a tip of the iceberg that you studied or you saw. There is a whole huge body lying below it.
So there is relativistic, quantum, Lagrangian, Hamiltonian, and Newtonian mechanics. So I'll be focusing on just Newtonian mechanics for now. Okay. Now a while back we all know Newtonian. Why is it Newtonian? Because Sir Isaac Newton was the one who discovered it. How does it all started? Well, it was the time of the plague when he had to go to his grandmother's house and he started observing the environment, right? He started observing the environment, and then all you know the story of tree and he sitting somewhere there, apple falling. Now there are all the phenomena were happening as they were, and everybody knew that if something fall from the sky, it is going to come to the ground. But Newton was the only one who could write it in, who could justify its principles. Why does this things happen? So he gave it its laws as such, which was so important, जिसको हमने कानून ही बोल दिया. So there were three laws of Newton. The first one, well, let us study the first one, that is the Newton's first law. Just a second, my pen is, which is Newton's first law. Now, generally, when I ask people or students like what is the Newton's first law, they generally answer the inertia. But it is actually inertia. But when we look a bit deeper into it, it asks us a question. What is the question that it asks is what happens to the body, to a body, when there is no force, right? What happens to the body when there is absence of force, right? So what do we answer at the time? Body tends to remain in its state of motion or rest. Motion or rest. This is said to be as inertia, right? What do we say? How do we define inertia? Is the virtue by which the body tends to remain in its state of motion or rest is known as inertia, right? So what does Newton's first law justify? It justifies the property of inertia, right? Now, when we come to inertia, when it not only defines this property of inertia, to be very honest, it also give us idea about a very important thing for the Newtonian mechanics to work, is the inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Okay. Now, what are inertial frames of reference? Like the Newton's laws are only valid in the frame which have inertia. Okay. ये केवल उसी, जब हमारे पास बेसिकली हमारा जब ऑब्जर्वर ही रेस्ट पे होता है, तब ही हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. If the observer itself start moving, is then we call it a non-inertial frame, right? It is a very uh, like
बेसिक वे ऑफ मी पुटिंग दिस थिंग कि अगर हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, हमारा ऑब्जर्वर है और ये एक जगह पे बैठ के कहीं पे से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कुछ एक्टिविटी होते हुए, तो दिस होल थिंग इज़ अ क्या, इनर्शियल फ्रेम। और अगर मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, ये खुद भी, जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक बस हो गया, एक मेट्रो हो गया, ये चल रहा है और ये यहाँ पे से किसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो फ्रेम है हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल, ओके। क्यों? अब ये नॉन इनर्शियल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ जो होते हैं वो वैलिड नहीं होते। ओके, why does the Newton's law are not valid in non-inertial frame and how do we deal with it? तो अभी डील कैसे करते हैं ये तो मैं बताऊंगा तुम्हें आगे लेक्चर्स में, बट बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता क्या है। तो अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में बात करूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, अगर मैं बात करूं नॉन, अरे सॉरी बैड, अगर मैं बात करूं नॉन इनर्शियल, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूं तो इसमें होते हैं हमारे स्यूडो फोर्सेस, राइट। स्यूडो फोर्सेस क्या होते हैं? स्यूडो फोर्सेस आर द फोर्सेस जो कि हमारे बेसिक इंटरैक्शन से नहीं जनरेट होते, दे आर इल्यूजन फोर्सेस। लाइक कोई भी फोर्स कब जनरेट होता है, या कोई भी, हाँ, कोई भी फोर्स कब जनरेट होता है, जब दो बॉडीज़ का इंटरैक्शन होता है। ठीक है, देखो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में मैं देखूँ, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास क्या होता है, स्यूडो फोर्स, ओके। नाउ व्हाट आर स्यूडो फोर्सेस? स्यूडो फोर्सेस आर नॉट काइंड ऑफ रियल फोर्सेस, दीज आर इल्यूजन्स। ठीक है, इनका नाम ही इसीलिए क्या रखा है, स्यूडो फोर्सेस। ये रियल इंटरैक्शन से जनरेट नहीं होते, काइंड ऑफ इल्यूजन से जनरेट होते हैं, ठीक है, होते हैं पर। तो ये स्यूडो फोर्स जो होते हैं ना, ये तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्यूडो फिक्शियस, स्यूडो और फिक्शियस बोलते हैं इसको। सेकंड जो ये हमारा लीनियर उसमें होता है, सेकंड जो होता है हमारा वो होता है स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल। ओके, ये स्यूडो स्लैश नहीं है, स्यूडो फिक्शियस और स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल, और थर्ड होता है हमारा स्यूडो कॉरियोलिस, कॉरियोलिस, स्यूडो कॉरियोलिस फोर्सेस। तो जो कॉरियोलिस फोर्सेस होते हैं यार, कॉरियोलिस से तुम्हें याद है, कॉरियोलिस फोर्सेस आर द फोर्सेस विच आर जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस साइड को डिफ्लेक्ट होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इधर लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होते हैं, उस टाइप्स का, ठीक है। स्यूडो कॉरियोलिस फोर्सेस, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कैसे डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्यूडो फोर्सेस आर नॉट रियल फोर्सेस which arise due to interaction, which arise due to interaction। ठीक है, अभी तुम सोच रहे हो इंटरेक्शन तो फिर कहीं मैग्नेटिक फोर्स भी जो होता है वो स्यूडो फोर्स हो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में भी उसका फील्ड से इंटरेक्शन या कुछ होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। यहाँ पे तो मैग्नेटिक, जैसे हमने कि इस मैग्नेट को के सामने एक आयरन वो रख दिया तो उसके फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ स्यूडो फोर्स which arises due to interaction। तो जो real which arises due to interaction, they are actually an illusion। ठीक है,
तो दिस वॉज द होल थिंग ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सबसे पहले तो क्या उसने क्या किया था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया हमारे लिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना ज़रूरी है ताकि हमारे न्यूटन्स के जो लॉज हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो सके, न्यूटोनिक मैकेनिक्स जो है वो वैलिडेट करे। ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की, वो केवल अच्छे से वैलिडेट तब करेगी जब वो नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम में होगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, इसको भी एक क्वेश्चन से समझो कि व्हाट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस। व्हाट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस, ये फोर्सेस के प्रेजेंस में क्या होता है? अगर कोई बॉडी है, सपोज लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दो बॉडी है, अगर मैंने इन पे फोर्स लगाया तो इनमें क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेकंड लॉ है ये क्या करता है, इट डिफाइंस, और ऐसे कह सकते हैं कि हमें ऑपरेशनल डेफिनेशन देता है। किसकी? फोर्स की, कि फोर्स कैसे ऑपरेट कर रहा है, और अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी पे क्या चेंज आएगा। ठीक है, बॉडी की स्टेट पे क्या चेंज आएगा, अगर हमने इस पर फोर्स लगाया तो क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो करता है, ये हमको डिफाइन करता है मास के बारे में। इट डिफाइंस मास। कैसे? अब ये एक छोटी बॉडी है और ये एक बड़ी बॉडी, मैंने इन पे सेम फोर्स लगाया, तो ये जो छोटी वाली है दिस इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसके जो ये ए डैश, अगर मैं बड़ी वाली का मानूँ तो जो ए होगा वो बड़ा होगा किससे, ए डैश से, है ना? क्यों? क्योंकि इसका जो मास है वो छोटा है पहली बॉडी का। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ठीक है, और ये तो मास में था ही इसको। अच्छा ठीक है, यहीं पे ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फेमस स्टेटमेंट है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, इसको हम बोलते हैं, जो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब दो क्वेश्चन के आंसर तो हम लोगों ने दे दिए। अगर मैं तुमसे तीसरा सवाल पूछूं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछूं, क्या व्हाट इज द origin of these forces, तो हाउ आर यू गोना आंसर? सोचो थोड़ा।
इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि फोर्सेस कब अराइज होते हैं? फोर्सेस अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बॉडी। जो आंसर होता है, फोर्सेस अराइज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज, है ना। अगर कोई दो बॉडी आपस में इंटरैक्ट कर रही है तो वो क्या होगा, उन पे जनरेट फोर्स जनरेट होगा। और दिस इज, अच्छा रुको, नॉट दिस इज, अगर देखो इसको समझाऊँ मैं तुम्हें। अगर मेरे पास एक बॉडी है, लेट्स सपोज आई हैव अ बॉडी ए। ओके, नोट दिस। Let's suppose I have a body this A and I have another body B, right? This is A, this is B, and they are interacting with each other, है ना। अब and they are interacting with each other, तो अब इन पे this is my body A, this is my body B, तो ये क्या करेंगे, इस पे एक इधर को फोर्स लग रहा होगा जिसको मैं कहूँगा क्या, एफ ए बी, और एक इसमें इधर को फोर्स लगेगा क्या, जिसको मैं कहूँगा एफ बी ए। तो जो ये है, ये हमको को क्या बताता है, क्या, एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। मैंने इस पे, इस बॉडी ने इस पे कुछ फोर्स लगाया और इस बॉडी ने भी उतना ही फोर्स इस पे वापस लगा दिया। तो ये हमें क्या बताता है, एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है क्या, कि द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, नॉट इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर एग्जैक्टली इक्वल एंड आर इन opposite direction, opposite direction, ओके। और ये जो पूरा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 फोर्सेस, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो लेट अस क्विकली रिवाइज कि हमने पढ़ा क्या क्या। हमने पढ़े पहले मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स के कितने ब्रांचेस हैं, है ना। मैकेनिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं, उसमें से हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे हमने बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है दैट वाज ओनली द लॉज ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस टू द बॉडी व्हेन इट हैज़ नो फोर्स, तो हमारे ने उसका आंसर दिया था कि बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन मोशन ऑफ स्टेट और रेस्ट। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ था वो हमें प्रॉपरली डिफाइन कराता है क्या, इनर्शिया। उसके बाद इनर्शिया से ही हम को एक और चीज़ के बारे में आइडिया देता है, दैट इज़ द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द न्यूटोनियन फिजिक्स। इसके बाद हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में पता चला कि सूडो फोर्सेस क्या क्या होते हैं। सूडो फोर्सेस 3 टाइप के होते हैं, ये अलग अलग सिस्टम्स के हिसाब से हम इनको डिफाइन करेंगे कि सूडो फोर्सेस क्या और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सूडो फोर्सेस में हमने देखा कि सूडो फोर्सेस 3 टाइप्स के होते हैं, सूडो फिक्शियस, सूडो सेंट्रीफ्यूगल एंड सूडो कोरियलिस। सूडो फोर्सेस के बारे में हमें एक और चीज़ पता चली कि सूडो फोर्सेस आर नॉट रियल फोर्सेस, दे अराइज ड्यू टू इंटरैक्शन। ना, सूडो फोर्सेस आर नॉट रियल फोर्सेस विच अराइज, विच नॉट रियल फोर्सेस, जो कि क्या अराइज होते हैं इंटरैक्शन से, विच अराइज ड्यू टू इंटरैक्शन, बट दे आर एक्चुअली इल्यूजन्स, ठीक है। जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ देखा, न्यूटन सेकंड लॉ में
हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था कि व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस, राइट? व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्सेस। तो प्रेजेंस ऑफ फोर्स में क्या होता है, उसमें एक्सेलरेशन लगता है। एक्सेलरेशन से हमें पता चला कि क्या फोर्स कैसे लगती है, फोर्सेस सो मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ये तो ठीक है, हमने मास के बारे में भी देखा कि मास कैसे वेरी करता है, अगर कि मास की वजह से एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है। अगर छोटा मास होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, बड़ा मास होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। उसके बाद हमने देखा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ दिस फोर्सेस क्या है। ओरिजिन ऑफ दिस फोर्सेस में हमने देखा कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और उनमें फोर्स लग रहा है, एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है एफ ए बी, और बी वापस ए पे कितना फोर्स लगा रही है, एफ बी ए है। और इससे हमें पता चलता है कि इस लॉ ने हमें बताया कि एक्शन और रिएक्शन के जो फोर्सेस होते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो दिस वर द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द न्यूटन्स लॉ। अब थोड़ा सा मेसी नोट्स रहे अभी, बट आई ट्राई टू बी मोर फ्लुएंट और मोर टाइडी विद माई वर्क नेक्स्ट टाइम, प्लीज़ बेयर फॉर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्री बॉडी डायग्राम्स और जो इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो सब देखेंगे। और उसके बाद हम वी विल मूव टू वेरियस केसेस कि हमारे पास जनरली कैसे केसेस पूछे जाते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।